Hello. Welcome back to the channel. I am CA Shivam Chaurasia and I hope all of you are doing really well. In this video, we're gonna talk about CA Final IDT strategy. And with this, our series of subject-wise CA Final strategies also comes to an end. I have already uploaded videos for every subject of CA Final curriculum. So if you're a CA final student, especially if you are a November 26 student, please do check him out. And as always, in this video, we're going to talk about everything from how to approach the subject to how to strategize for it or how to prepare for it. And of course, I'm going to end this video with some very sweet, short, and crisp advice on how to tackle the 100-mark paper in the 3 hours of the exams so that you're not just ready with the material but are also ready for the exams. So, without any further ado, let's get started. First of all, let me start with some fundamental advice on how to approach the subject or how to see the subject. It's that, and I also talked about this, what is going to be my first advice here in my DT video. And the advice is simple. While studying IDT or rather any tax subject, always think like a tax professional. आपको उस माइंडसेट में रहना है कि आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं और आपकी एक क्लाइंट मीटिंग होने वाली है और जो भी प्रोविजंस आप पढ़ रहे हैं यू गोइंग टू हैव टू एक्सप्लेन दोज प्रोविजंस टू दैट क्लाइंट who comes from a non-commerce, non-tax background, does not know anything about taxation or commerce. क्योंकि जब आप ये माइंडसेट से चीज़ें पढ़ते हैं तो यू गेट अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. अब आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टू द लेवल कि आई कैन बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली. आप के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि वाई डिड दिस कॉन्सेप्ट कम इन टू बीइंग, ये प्रोविज़न सरकार ने क्यों लाया होगा, इस प्रोविज़न से ट्रांजैक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टैक्स पे या टैक्स क्रेडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेसमैन पे क्या असर पड़ने वाला है. You start getting all of these questions when you start thinking from that approach कि you should be able to explain any provision you study to a complete lay person who does not know anything about taxation. क्योंकि once you are able to get on that level, that is when you know that you're actually good at the subject, that you're building expertise in it. So that is definitely going to be my number one advice. My second advice would be कि don't study IDT as this stack of chapters कि ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर अलग है. IDT is a very connected subject. IDT में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत जुड़ा हुआ है, दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर से बहुत जुड़ा हुआ है. दिस बेसिकली अ स्टोरी टू IDT. तो हमेशा IDT को पढ़ने से पहले या पढ़ते हुए ये कनेक्शंस हमेशा याद रखिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर IDT जर्नी. And my third approach advice would be very simple. You've probably heard it 1,000 times before और 1001वीं बार I am going to tell you this. Sorry, I am going to tell you this कि IDT में चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. That is a fact that cannot be changed. Anything you do that stays. IDT में चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. But does that mean that IDT is all just a mugging up game? No, definitely not. But the fact still stands कि IDT में चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. But it does get better जब आपको प्रोविज़न की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, जब आप ये समझने लगते हैं कि ये प्रोविज़न क्यों आया होगा, क्या इफेक्ट होता है, क्या मतलब होता है. 50% of your work gets done. But still, you need to be ready from day one, and this is why I'm covering this in the approach part of my video, because you need to be ready for this from day one. You need to be ready in your head कि हाँ, I'm going to start this subject and I'm going to have to retain a lot of things, and you also start with this confidence कि it does get better with practice. आप पहली बार पढ़ते हैं, आप काफ़ी गलतियाँ करेंगे,
आप रिटेन नहीं कर पाएंगे चीज़ें, आप भूल लेंगे चीज़ें, बहुत गलतियाँ होंगी। एंड यू नीड टू नो दैट इट इज़ ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सबके साथ होती हैं। सब शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजंस भूलते हैं, सब क्वेश्चंस करने में फंबल करते हैं, सब गलतियां करते हैं। बट वंस यू रीविजिट दो सेम प्रोविजंस, आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ते हैं, तो वो गलतियां वैनिश होने लगती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू बी रेडी फॉर, कि it's gonna be a hard subject, you're gonna make a lot of mistakes, but do not let it go to your heart, do not get disheartened by it, सबके साथ होता है, और ultimately you will learn to get past it. So that finishes my how to approach the subject or how to see the subject part of this video. Next we're going to move to the most important part of this video, which is how to strategize for the subject, or rather how to prepare for the subject. In this regard, what I am going to advise you is, first of all, when you're starting the subject, or whether you are a student जो IDT को पहली बार पढ़ रहा है, और you are a student जो IDT का रिविजन कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड एनी रिविजन, what I want you to do before starting your preparation or revision is that material में जाने से, oh everything okay, my phone just slipped and fell. Okay, so moving on. Where were we? Yes, we were here. Before starting the content of your subject, start with the index. और इंडेक्स में क्या करना है, इंडेक्स पढ़ के एक मैप बनाइए दिमाग में, जैसे हमने अप्रोच पार्ट ऑफ दिस वीडियो में भी कवर किया था। एक मैप बनाइए कि कौन सा चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, और कौन सा चैप्टर एग्जैक्टली कौन से सवाल को केटर करता है। जैसे आप आईडीटी शुरू करते हैं, आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि अच्छा सप्लाई क्या होती है, टैक्स सप्लाई पे लगता है, और सप्लाई ये होती है। अच्छा, अब सप्लाई कौन करता है और टैक्स कौन पे करता है, इसके बेसिस पे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं ये डिफाइन हो जाता है। तो अच्छा, चार्जेस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अब चार्ज तो लग गया, पर टैक्स पे कब करना है ये कैसे डिसाइड होगा, टाइम ऑफ सप्लाई आंसर्स दैट। अब ठीक है, टैक्स पे कब करना है ये डिसाइड हो गया, पर कौन से टाइप का टैक्स पे करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई आंसर्स दैट क्वेश्चन। चलो, कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह का टैक्स पे करेगा ये पता चल गया। कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिन पर टैक्स नहीं पे करना होता है, योर एग्जेम्पशंस। तो ऐसे हैव अ मैप इन योर हेड कि कौन सा चैप्टर एग्जैक्टली कौन से सवाल केटर करेगा, और कौन सा चैप्टर अगले चैप्टर से किस तरह से कनेक्टेड होगा। ना ऑफ कोर्स अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो यू विल ऑलरेडी हैव सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद यू, पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इंटर में ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वन थिंग। बट ऑफ कोर्स अगर आपको याद नहीं है तो इट इज़ वेरी ओके, भूल जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम ही नए हैं सब्जेक्ट से और पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आई सजेस्ट गूगल थिंग्स, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, या चैट जीपीटी को कंटेंट्स दे दीजिए, उससे यही सवाल पूछ लीजिए कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, और गिव मी अ ब्रीफ समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन जो ये आंसर करते हैं। और तो दैट विल हेल्प यू गेट अ अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ आईडीटी, कि सब्जेक्ट कैसा फ्लो करता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ये आपकी प्रिपरेशन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज यू नो आईडीटी में क्वेश्चंस कई बार बहुत सेग्रीगेटेड नहीं आते हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से डील करता है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से डील करता है। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर अ लॉट ऑफ द टाइम्स कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको 3-4 सब्जेक्ट से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पिकअप करके उस क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे। और इस तरह का मैप हेल्प्स यू इन दोज सिचुएशंस जब आपको एग्जैक्टली पता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में था, ये वाले क्लैरिटी ये चैप्टर देता है, ये वाली क्लैरिटी ये चैप्टर देता है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाते हैं आपके लिए। सो आई रिकमेंड दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, then you move on to the actual content. And what you have to do while you're preparing the actual content is, number one, what I'll advise you is, as I always say, कोई भी टैक्स सब्जेक्ट
be it IDT or DT, it is 50% understanding, 50% learning. So before learning, I want your first reading to just be about understanding. पहली रीडिंग ऑफ योर कंटेंट में, भले आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, आप पहली बार जब पढ़ने वाले हैं प्रोविजंस, तो योर फोकस शुड नॉट बी अबाउट लर्निंग दोज थिंग्स और रिटेनिंग दोज थिंग्स और कि याद आ रहा है कि नहीं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. आपके क्वेश्चन ये होने चाहिए कि प्रोविजन समझ आ रहे हैं कि नहीं, ये प्रोविजन का जिस्ट क्या है वो पता है कि नहीं, ये प्रोविजन क्या कहना चाहता है, क्यों बना होगा, ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं. क्योंकि वंस यू गेट डन विथ दिस, लर्निंग वाला पार्ट बहुत ईजी हो जाता है फिर, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविजन अब आप इंट्यूटिवली समझने लगते हैं कि अच्छा ये प्रोविजन ये ऐसी 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 बातें करता था. तो अब जब एक्चुअली आप बेयर लॉ की लैंग्वेज याद करने पे आएंगे तो बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा आपके पास, क्योंकि अब आपके दिमाग में वो फ्लो बना हुआ है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उस प्रोविजंस की, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट. और एग्जाम्स में भी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोविजंस हेल्प्स यू अ लॉट व्हाइल राइटिंग योर पेपर्स, क्योंकि द एग्जामिनर एग्जैक्टली डज नॉट डिमांड कि आप बेयर लॉ का बेयर लॉ ही छाप दो. एग्जामिनर डिमांड्स कि आपको एप्लीकेशन आ रही है कि नहीं और आप की फ्रेजेस और की वर्ड्स ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं. तो वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग भी इजी हो जाती है, प्लस आपकी एग्जाम में क्वेश्चन राइटिंग भी बहुत इजी हो जाती है. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांट यू टू डू. एंड देन सब्सिक्वेंट रीडिंग्स आपकी होनी चाहिए लर्निंग पे और रिटेंशन पे. अब आपका फोकस शिफ्ट होके वहाँ हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें प्रोविजंस याद भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अब आप एक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद यहाँ आते हैं, तो एज आई सेड 50% ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन. आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ आने लगती हैं. सो दिस वुड बी योर कंटेंट स्टडिंग स्टाइल. नेक्स्ट व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपने एक टॉपिक या एक चैप्टर लेट्स से फिनिश कर लिया. व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप उसी वक्त उसकी एक 1 पेजर समरी बना के रखिए, क्योंकि at whatever stage you're on, if you have not done this already, I want you to do this while all the concepts are fresh in your head still. And this is very important step जो skip करने का आपको बहुत मन करेगा, बहुत मन करेगा कि यार नहीं बनाते हैं, बुक से पढ़ लेंगे, इतना अच्छा तो हो रहा है, याद आ रही हैं सब चीज़ें. क्योंकि द थिंग इज़ कि अभी पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें याद आती हैं, चीज़ें समझ आती हैं, सब कुछ होता है. पर अल्टीमेटली एग्ज़ाम से पहले वाले 1.5 दिन में जब हम इतनी मोटी किताबें देखते हैं तो दिमाग घूमने लगता है कि कैसे ही कवर हो पाएगा. बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय चीज़ें कवर करनी. तो अगर आपने शुरुआत से ही वो एफर्ट्स डाले हैं सिंगल पेजर समरीज बनाने में, चीज़ों को इस तरह से मेंटेन करने में कि रिविजन के टाइम पे आपको बहुत सहूलियत हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करे होने में, क्वेश्चंस की छोटी छोटी समरीज इफ़ यू वांट टू राइट मार्जिन्स में लिखने में, दीज थिंग्स रियली हेल्प यू अ लॉट उन 1.5 दिनों में जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. So that is one thing that I want you to do. Another connected thing that I want you to do is always have a mistakes register, और या फिर क्वेश्चंस के मार्जिन्स में ही आप उन क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ अटक रहे थे या मिस्टेक कर रहे थे वहीं वहीं लिख लेंगे तो भी काफ़ी बेटर होगा. क्योंकि अल्टीमेटली रिविजन के टाइम पे आप वो मिस्टेक्स पे जब फोकस करेंगे तो यू विल मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर IIT preparation. So when you're through with this preparation part, what you should do is, and this is a very important advice, is that your question practice should start very early on in your preparations. And why am I saying that is क्योंकि आप एक बार प्रोविजंस कर लेते हैं, फिर आप जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो नो डाउट आपसे काफ़ी सारी गलतियाँ होनी है, क्योंकि CA फाइनल का फॉर्मेट ही ऐसा है कि काफ़ी सारी नॉलेज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए भी गेन करते हैं. आप ICI की पैटर्न समझते हैं, आप प्रोविजंस में जो लूप होल छुपे हुए थे, जो प्रोविजन पढ़ते टाइम आपको समझ नहीं आए थे, वो क्वेश्चन करते समय आपको समझ में आने लगते हैं. सो व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़ कि प्रोविजंस प्रिपेयर करते ही
योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी क्वेश्चन प्रैक्टिस. ऑलवेज रिविजन से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन द प्रोविजन जो आप अभी पढ़ के आए हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस विल गिव यू अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन अ लॉट ऑफ प्रोविजन जो आपने पढ़े हुए होंगे. एंड दिस फीड्स अ गुड डील इन योर रिविजन. अब रिविजन करते हुए आप प्रोविजन पढ़ते पढ़ते सिर्फ प्रोविजन ही नहीं याद करते हो, अब आपके दिमाग में ये भी आता आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोविजन से इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अच्छा इस प्रोविजन में ये एक डिच है जहाँ यूजुअली गलतियाँ हो जाती हैं या इस पे ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं. So that really helps you a lot in your revisions, which brings us to our next step, which is revise, revise, which of course you know. So I'm not even gonna give a lot of time to that. And my last piece of advice in this preparation segment is please write tests, and please write timed tests. I'm not gonna say कि आपको सब्जेक्ट खत्म होने के बाद सारा टेस्ट एक साथ ही लिखना चाहिए और समथिंग लाइक दैट, पर एटलीस्ट चैप्टर फिनिश करते ही उस चैप्टर के कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, 3 या 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, और टाइम्ड राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक एग्जाम सिमुलेशन देगा. और एज एवरीबडी ऑलवेज सेज, इट्स बेटर टू फेल बिफोर योर एग्जाम्स देन इन योर एक्चुअल एग्जाम्स. आप एग्जाम से पहले जितनी गलतियां कर सकते हैं कर लीजिए, एग्जाम से पहले जितने मॉक टेस्ट देखिए, जितनी बार फेल हो सकते हैं हो लीजिए, पर एग्जाम्स में फेल नहीं होना है. एग्जाम्स तक आप उस लेवल तक मॉक टेस्ट देके पहुंच जाने चाहिए कि आपको क्वेश्चंस से प्रोविजंस क्लिक हो रहा है और आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है एग्ज़ाम टाइम तक. And when it comes to preparations, always remember the SMART strategy of studying. What is SMART strategy of studying? SMART. S for study the law, M for master with practice, A for analyze your mistakes, R for revisions, and T for test to consolidate your preparations or consolidate your knowledge. That is the best advice that I could give. Follow the SMART method of studying. Very effective, works very well, and I'm sure if you follow all of these stages or steps, you're going to cruise through your IDT preparations, and you're going to finish IDT with a lot of confidence, and yeah, things will be good for you. And last but not least, the final segment of our video is how to tackle the 100-mark paper in the 3 hours of your exams. This is going to be pretty much standard advice. I would advise you that prefer not to start with the first mandatory question, क्योंकि मुश्किल होता है और लंबा होता है. शुरुआत में हमारी राइटिंग थोड़ी स्लो और लेजरली होती है. कई बार फर्स्ट क्वेश्चन में हम इतना समय और इतना ब्रेन पावर लगा देते हैं कि आगे के लिए समय नहीं बचता है या हम थक जाते हैं. तो until and unless the first question is one of your very strong questions, avoid starting with that question. उसको कुछ लास्ट की तरफ रखिए. What I want you to do is first hour में complete the first 2 of your best answers. Second half में complete the third of your best answer and try to do MCQs. अगर MCQs थर्ड आवर के भी 5 या 10 मिनट तक लीक कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन द लास्ट 1 आवर और 15 मिनट्स और सो आप आखिरी के आपके लीस्ट बेस्ट 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं. प्रेफर अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको भी यहाँ आप रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नाउ यू नो एग्जैक्टली कितने समय में करना है, एग्जैक्टली कितना ब्रेन पावर और टाइम उसको आप दे सकते हैं. दैट यूजुअली सेव्स यू लिटिल टाइम इन योर एग्जाम्स, क्योंकि what my advice generally is in this respect is मुश्किल क्वेश्चन के 2 मार्क्स और आसान क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैव इक्वल वेटेज. तो इट्स बेटर टू फिनिश अप ऑल दी आसान क्वेश्चंस फर्स्ट, जो आपके बहुत अच्छे से बन रहे हैं, जो आपको मार्क्स फेच करके लाएंगे, देन टू मूव ऑन टू द मुश्किल क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज
रियली अ फाइट फॉर मार्क्स उन क्वेश्चंस में। तो आसान वाले मार्क्स आप जब पहले ले लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा कि यस इतने मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं। फिर आप मुश्किल क्वेश्चंस पे जाते हैं तो आप एक प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस से भी जाते हैं, तो यूजली थिंग्स टर्न आउट बेटर फॉर यू। So yeah, that's how you finish your 100 marks of paper in the 3 hours. I hope you found the advice in this video to be useful. Please do check out all the other videos of the final strategy. If you have any particular subject of uh, that you struggle with, do check out the relevant video. If you have any question regarding IDT or any other CA final subject, please comment down below, and I wish you all the very best for your exams, and I wish all of you become very quality chartered accountants and have great careers ahead. Thanks for watching. You've been a great audience. See you later.